Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. In the previous lesson, we have discussed about Rutherford's atomic model, and today we will discuss Bohr's model of an atom. It is also consistent with Rutherford atomic model, but it also explains the drawbacks of Rutherford atomic model. As you know that there were two drawbacks in Rutherford atomic model, so Bohr will try to clarify those drawbacks. Okay, before going to the postulates of Bohr's atomic model, we will discuss about Niels Bohr. Niels Bohr, his full name was Niels Henrik David Bohr, and he was a Danish physicist. Danish means he belongs to Denmark. He was born in October 7, 1885 and died on November 18, 1962. He received the Nobel Prize for Physics in 1922, and he manifolds the roles in knowledge, origins and development of quantum physics. Means he had a lot of work in quantum physics, in the development of quantum physics. He also discovered an element bohrium, which is named after him. He proposed a model for an atom that was consistent with Rutherford atomic model, but explains the observed line spectrum of hydrogen atom. Okay, students, I hope you have got my point. नील बोहर एक डैनिश फिजिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में मिला था 1922 में. उन्होंने एक एलिमेंट डिस्कवर किया था जिसका नाम बोहरियम था, which was named after him, and उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया. That atomic was consistent with Rutherford's model but explains the drawbacks of Rutherford atomic model, that according to Rutherford an atom will give a continuous spectrum, but that was not right. Okay, so it was explained by Niels Bohr. Okay, students, before going to our further explanation of Bohr's atomic model, let us watch a video that would be quite helpful for you to understand all the next postulate of Bohr's model. Before that, you have a review of Rutherford's drawbacks. To explaining the structure of atoms. However, it was not very appropriate theoretically. And why are we saying so? We know that any charged object which revolves in a circular motion gains acceleration gradually. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now, if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. These were made by the next legendary scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Now, these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this. Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center.
and the electrons are like planets which revolve in fixed, defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now the name energy levels gets us to an important concept. Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Yes, K, L, M, N, and so on. And what if we want to number them? In that case, we use the letter N in lowercase and write them as N equals 1, N equals 2, N equals 3, and so on, beginning from the one next to the nucleus. So we can name them alphabetically, or we can even number them. With all these theories and points known, do we now know the structure of a typical atom completely? The nucleus contains positive protons and the electrons revolving around in fixed orbitals. Is that how an atom is structured? Not really. We still have one more subatomic particle left. And what and where could it be? Let's find that out. It was around the year 1932 when a famous English physicist, Sir James Chadwick, found the third subatomic particle. He found that the particle had a mass almost equivalent to that of the proton. And what about its charge? Astonishingly, it had no charge. Yes, the particle was neutral. The particle was later named as neutron, denoted by the letter N. Thus, now we have the complete design of an atom. In the center lies the nucleus having positively charged protons and neutral neutrons, while the negatively charged electrons revolve in fixed orbitals around the nucleus. But how exactly are the electrons distributed in the respective orbitals? Is there a way to find out the maximum number of electrons that one orbital can contain? Or is it that the electrons are randomly scattered in the orbitals? Let's find out the answers to these questions in our upcoming video. Okay dear students, आपके सामने स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं. हमारा सारा टॉपिक जो है हम इसको वन बाय वन पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे. एट द एंड मैं आपको रिवीजन के लिए एक वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद आई होप आपके ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. आपने इस वीडियो से क्या क्या लर्न किया, रदरफोर्ड के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और उन ड्रॉबैक्स को नील्स बोहर ने कैसे काम किया. आपको एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है. अब हम जो पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं उनको वन बाय वन एलैबोरेट करेंगे. ओके To explaining. Okay, so we are going to discuss postulates of Bohr atomic theory. The Bohr model of atom, electron energy levels. In 1913, Niels Bohr proposed that an atom's electrons are arranged in energy levels around the nucleus. The electrons move not in the circling orbits but within the shells. The inner shells hold 2 electrons maximum, the second shells hold 8 electrons maximum, and the third shell holds 18 electrons. So this was a general perception by Niels Bohr. उन्होंने क्या propose किया कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है. उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं. उन ऑर्बिट्स के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड के अंदर 18 होंगे, एंड थर्ड के अंदर सेकंड के अंदर 8 होंगे, थर्ड के अंदर 18 होंगे, एंड फोर्थ के अंदर 32 होंगे, एंड सो ऑन. ये एक जनरल परसेप्शन था, एक जनरल जो है थ्योरी थी बोहर की. अब हम इसके पोस्टुलेट्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन. सो पोस्टुलेट नंबर 1 इज the electron in an atom revolves around the nucleus in one of the circular orbit. Each orbit has a fixed energy, so each orbit is called energy level. Okay students, what comes in your mind when you have read all these lines? Yes, ठीक है बेटा, ये हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं और उन सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है.
ठीक है। अब उन हर ऑर्बिट की एनर्जी क्योंकि फिक्स होती है तो हम उनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। ऑर्बिट्स के अलावा उनका दूसरा नाम हम उनको क्या दे सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम भी इन ऑर्बिट्स को हम दे सकते हैं, शेल्स का नेम भी हम इनको दे सकते हैं। ठीक है। आपने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें फिर ड्रॉबैक क्या था कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कम होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो वो न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे और एट द एंड वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। तो अब ये चीज तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इसको सेट करने के लिए बोहर ने पास्टुलेट दिया, दैट इज पास्टुलेट नंबर 1 एंड इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी। मींस कि अब आपकी स्क्रीन पे साइड पे नजर आ रही है ना डायग्राम, इसको आप गौर से देखें तो n इज इक्वल टू 1, ये शेल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर n2 जो है सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हर शेल की इसने क्या कहा, बोहर ने क्या कहा, हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। n1 है इसकी एनर्जी फिक्स होगी, n2 है इसकी एनर्जी फिक्स होगी, n3 है इनकी एनर्जी फिक्स होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स होगी, वो कॉन्टिन्यूसली ना तो इमिट कर रहा होगा ना ही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ओके। अब देखिए आपकी इस डायग्राम में नजर आ रहा है एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड एटम एमिट्स एनर्जी। तो एटम एब्जॉर्ब और इमिट कब करता है कि जब वो अपना शेल छोड़ के जाता है, अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोअर वाले में जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। ये आपका फर्दर पास्टुलेट है, उसमें आप डिटेल से स्टडी करेंगे। सो वन पास्टुलेट को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी ने कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए इनको हम हर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। मूविंग टू द postulate number 2, the energy of electron in an orbit is proportional to its distance from the nucleus. The farther the electron is from the nucleus, the more energy it has. क्या बात यहाँ पे गिवन है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना हर एनर्जी ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट शेल नंबर 1 इज 1 एनर्जी लेवल, फिर सेकंड एनर्जी लेवल, फिर थर्ड एनर्जी लेवल, फिर 4 एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। आप शेल्स बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल आपके इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इन शेल्स के साथ कैसे रिलेशन है कि आपके पास जो शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो शेल न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके। सो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में हो और अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल में हो तो इनमें से किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी? थिंक इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर कर देती हूँ कि आपके पास अगर ये आपको डायग्राम को सामने रखें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एन शेल में है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एज द सेकंड postulate स्टेट्स, द farther the electron from the nucleus the more energy it has। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड postulate। इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स एनर्जी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। ठीक है। हर ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दूसरे ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होती है। जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर होंगे, सबसे ज्यादा दूर वाले शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एज इट states that the farther the electron is from the nucleus the more energy it has। Okay, this was all about second postulates. Now we move to third postulates.
Third is light is absorbed when an electron jumps to a higher energy orbit and emitted when an electron falls into a lower energy orbit. Electrons present in a particular orbit does not radiate energy. पहले तो इस पास्टुलेट की सबसे आखिर वाली लाइन को एक्सप्लेन मैं कर दूं कि जैसे कि रदरफोर्ड, पिछले मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, रदरफोर्ड मॉडल ने ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था. रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा तो एट द एंड वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा. ठीक है, तो अब बोहर ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ऑर्बिट के अंदर जब प्रेजेंट है तब वो एनर्जी ना तो रेडिएट कर रहा होता है ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, बस वो उसी ऑर्बिट के अंदर अपनी फिक्स एनर्जी के अंदर मूव करता रहेगा, ना एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा. ओके तो इसने साथ में ये भी बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती हैं कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं ना, बाहर से इसको एनर्जी दे देते हैं या इधर से एनर्जी जो है ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जैसा कि आपने पिछले पास्टुलेट में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन जितने दूर होते जाएंगे तो हर शेल की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. E1 जो अब यहाँ पे N1 शेल है ना, इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर N2 शेल है उनकी एनर्जी N1 से ज्यादा है, फिर N3 शेल है उसकी एनर्जी N2 से ज्यादा है, एंड सो ऑन. जितने दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी जो है इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, अब जो है N1 शेल की एनर्जी कम है और N2 शेल की एनर्जी जो है वो ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन जब कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी वाले में जाएगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी उसको ज्यादा करनी है, तो ज्यादा एनर्जी करने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए वो क्या करेगा, उसके पास कम एनर्जी है तो वो बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके पास जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो सेकेंड ऑर्बिटल में मूव करके चला जाएगा. ओके तो यही बात है. पहले इसमें लाइट इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट. हायर एनर्जी में जाने के लिए उसकी एनर्जी चाहिए ना, उसकी पहले कम एनर्जी है तो वो एब्सॉर्ब करेगा, तब उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव कर लेगी. ठीक है, और जो सेकंड केस है वो बिल्कुल ही इसके अपोजिट है. इसी का वाइस वर्सा है कि अगर आपके पास अब N2 है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है और N1 की एनर्जी कम है, तो 2 से 1 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कम करनी है. कम करने का क्या तरीका होता है, वो अपनी कुछ एनर्जी इमिट कर दे, रिलीज कर दे. ठीक है, तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, मींस अपनी हाई एनर्जी को कम करना चाहता है, लोअर एनर्जी में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, हाई एनर्जी कम करने के लिए क्या करेगा, कुछ एनर्जी जो है अपनी वो इमिट कर देगा. ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड पास्टुलेट. इसको एक दफा क्लियर कर लेते हैं कि लाइट एब्जॉर्ब होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, और लाइट एमिट होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है. अंडरस्टूड? This was all about third postulates. Now we will move to fourth postulate. The energy of light emitted is exactly equal to the difference between the energies of orbits. आपने पढ़ा है ना कि आपके पास ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती हैं. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E3 है, एंड सो ऑन. हर शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है. ठीक है, तो उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो भी फिक्स होगा. फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करें कि अगर ये अब एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं बता रही, मैं अजम्पशन के लिए आपको आसान अल्फाज में बता रही हूँ कि आप अज्यूम करें कि फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है ना, तो आप अज्यूम करें उसकी एनर्जी 10 है. ठीक है, और सेकंड शेल है उसकी एनर्जी 20 है, थर्ड शेल है उसकी एनर्जी 40 है, 5 शेल है उसकी एनर्जी 50 है. तो आप देखेंगे कि इनके अंदर एनर्जी का एक स्पेसिफाइड डिफरेंस होगा. तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा ना, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी ही वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या एमिट करेगा. फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वो E2 से E1 में जा रहा है. ठीक है, E2 की एनर्जी मैंने अभी आपको क्या फर्स्ट की 10 बताई है ना, तो सेकंड ऑर्बिट की 20 बताई है. अब 20 से वो 10 में जाएगा तो हम माइनस कर देते हैं 20 माइनस 10, तो एनर्जी का कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है. मींस कि अब 1 और 2 ऑर्बिट में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए. फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर वाले अपने से ज्यादा ऑर्बिट में जाएगा, हायर एनर्जी में जाएगा तो वो 10 kg अब्सॉर्ब करेगा, और लोअर एनर्जी में जाएगा तो वो 10 kg रिलीज करेगा. इस पास्टुलेट का ये मतलब है. ठीक है,
कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो वो कितनी एनर्जी होगी, जितनी उन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस होगा, where delta E is the energy difference between any two orbits E1 and E2. Understood? So this was all about force postulate. Now move to the next postulate. And that is the electron revolve only in those orbits for which the angular momentum of electron is an integral multiplier of h over 2 pi, where h is a Planck's constant. अब ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देख के परेशान नहीं होना, इसको मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है बेटा, आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, पहले मैं मोमेंटम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एंगुलर मोमेंटम पे आएंगे और फिर इस पॉइंट को समझते हैं। मोमेंटम क्या चीज होती है कि आपके पास एक स्टोन है, आपने उसको फेंक दिया है, उसका मोमेंटम क्या होगा, जो स्टोन का मैस है और जिस स्पीड से आपने उसको फेंका है ना, अगर उस मैस और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, और अगर आप उसी स्टोन को किसी भी डोरी से बांध के उसको घुमाना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर मूवमेंट में आ जाएगा ना। तो अब सर्कुलर के, अब उस सर्कल के अंदर उसको जो मोमेंटम है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अंडरस्टूड? दोबारा से बता रही हूँ, मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होते हैं ना, कोई भी मूविंग चीज होती है, तो जब वो मूव कर रही होती है तो उसकी मैस और उसकी स्पीड का जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। और जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसका वो मैस और जो उसकी स्पीड है और उसका रेडियस का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं ना, तो उसका भी कोई ना कोई मोमेंटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस भी होगा और वो एक स्पेसिफाइड स्पीड के अंदर मूव कर रहा है, एक सर्कल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना किसी ऑर्बिट के अंदर, तो बोहर ने हमें बताया कि उनका मोमेंटम भी फिक्स होता है। ठीक है, और उनका मोमेंटम किसका मल्टीपल होता है, h ओवर 2 पाई। अब ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसकी आप डिटेल में ना जाएं, वो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसकी कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि हर ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफाइड एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैस, वॉल्यूम और रेडियस। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन का मैस स्पीड एंड रेडियस। अब हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होगा। ये बात कही है हमने, हमें किसने, बोहर ने। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, h ओवर 2 पाई। अब फर्स्ट ऑर्बिट है ना, उनकी वैल्यू होगी h ओवर 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट है तो उसकी वैल्यू होगी 2h ओवर 2 पाई। थर्ड ऑर्बिट है तो वो होगा 3h ओवर 2 पाई। फोर्थ ऑर्बिट है तो वो होगा 4h ओवर 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीप्लायर का ये मतलब होता है। अंडरस्टूड? यहाँ पे मैंने क्या बात बताई, इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दायरे के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर जब मूव कर रहा है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। ठीक है, और किसी भी ऑर्बिट के अंदर मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वो एंगुलर मोमेंटम चाहिए है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास वो फिक्स मोमेंटम नहीं है तो वो उस ऑर्बिट के अंदर मूव नहीं कर सकता। ओके, so this was all about 5 postulates of Bohr's atomic model. आप लोगों के पास अब हैं एग्जांपल्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कि आपने इसको ड्रॉ करने कैसे करना है। बोहर एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस वाली बात तो रदरफोर्ड वाली है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसने डिस्कवर कर लिया था ना रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आसपास ऑर्बिट है और उन ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स है। अब बोहर ने हमें क्या क्या बताया, ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स है और उसके मोमेंटम भी फिक्स है, और वो जो है कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हुए वो कोई भी एनर्जी जो है वो इमिट या रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो अब देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 6। तो आप देख सकते हैं जितने इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो आप न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स लिखेंगे और इसके आउटर मोस्ट शेल्स में आप 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो बोहर मॉडल हमें क्या बताता है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 आएंगे, थर्ड में 18 आएंगे, फोर्थ में जो है 32 आएंगे एंड सो ऑन। क्लोरीन का मॉडल आपको सामने दिखाया गया है, इसके 17 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी
फिलिंग की गई है। ठीक है, अब हम बेटा इस वीडियो में आपका ये सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, आपने इसको गौर से देखना है। आपके सारे पॉइंट्स जो हैं आई होप मैंने क्लियर करने की तो पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो इस वीडियो में ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा। Atom. Various models of the atom have been proposed by eminent scientists over the years. These models have increased our understanding of the atomic structure. Among these models, Rutherford suggested that electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits, but there was a problem with this. The motion of electrons in Rutherford's model was unstable because any charged particle moving in a circular path emits electromagnetic radiation. Thus, the electrons would lose energy and fall into the nucleus, making the atom highly unstable. Then, which would be a better model of an atom? To overcome the objections against Rutherford's model of atom, Niels Bohr in 1913 proposed a new atom model. What does this model propose? It first proposes that electrons revolve around the nucleus in specific orbits, and these orbits are associated with definite energies and are called shells or energy levels. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2, where n is the number of the orbit. Thus, K shell would have 2 electrons, L shell would have 8 electrons, M shell would have 18 electrons, and N shell would have 32 electrons, and so on. That said, what does this model next propose? It next proposes that the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost level is 8. And finally, it says that the orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has the maximum energy. Well then, does an electron radiate energy by itself? Since electrons move in a particular orbit, they do not radiate energy by themselves. What happens instead is when an atom absorbs energy, the electrons get excited and jump into the next higher energy level. The electron can radiate energy and return to its original state or drop down to the next energy level. Bohr's model works well for simple atoms and is easy to understand. It is one among the atomic structures still in use today, and the other being the quantum mechanical model. Things to remember. In 1913, a Danish physicist Niels Bohr proposed an atomic model known as Bohr's atomic model. In an atom, the electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8. The orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has maximum energy. Electrons are excited to the higher energy levels by absorbing energy and return to the lower energy levels by radiating energy. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी सारी क्यूरीज रिजॉल्व हो गई होंगी एंड आप लोगों ने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ बोहर्स थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, कि कैसे बोहर थ्योरी जो है वो रदरफोर्ड से डिफरेंट है। आप लोगों को अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर नहीं आई होगी तो मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दूंगी। आई होप इसको समझ आपको क्लियरली आ गई होगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, बोहर मॉडल ड्रॉ करने हैं। ये 3 एलिमेंट्स आपके सामने गिवन है, इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सारी चीजें गिवन है। आपने सिंपली बोहर्स मॉडल ड्रॉ करना है, जिसमें दरमियान में आपने सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर लिखेंगे और इसके आसपास जो है शेल्स ड्रॉ करेंगे और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे।
ओके, मैं स्लाइड को ज़रा रोक रही हूँ ताकि आप इस होमवर्क को नोट कर लें. Okay, dear students, thank you so much. This was all about today's lesson. I hope you all have learned a lot and enjoyed the lesson. And कल मिलते हैं. आपने अपना होमवर्क इन टाइम कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ एंड अपना ख्याल रखिएगा.